আর কি কি করবে ভাই? আর যারা বিজেপি বেশি দালালি করছে সব কটার নাম লেখা আছে, একেবারে A to Z, কার কোথায় বাড়ি। আমাদের লোকেদের খোঁজ নাও তো, তোমাদের যতজন যেখান থেকে এসছে বিজেপি পরিবার দেখে দেখে বেছে নিয়ে এসেছো, আর উকুন বাছার মতো অফিসারদের অ্যাপয়েন্ট করেছো। মনে রেখো, কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার। আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে তাহলে অলরেডি আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি। তুমি ক্যাচ করা করবে, সব ইল্লিগাল কাজ করে যাচ্ছে আর বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন মুখে লোকপ্রাস্তান নিয়ে বসে আছে। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। नमस्कार, जोहार। देखिए, कल प्रथम चरण बंगाल के चुनाव में 90% से ऊपर यानी 92 वोट हुए, यानी 93% कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब जब इस तरीके से मैसिव पोल होता है ना, तख्ता पलट होता है, कुछ नया देखने को मिलता है। कई राजनीतिक जानकार अभी भी मान रहे हैं कि इतनी आसानी से मत समझ जाइए कि परिवर्तन होगा, क्योंकि वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का 3M फैक्टर है: ममता, मुस्लिम और मुसीबत से छुटकारा दिलाना। ममता बनर्जी का ये 3M बहुत मायने रखता है और इस बार भी कुछ यही देखने को मिलेगा। वो बात अलग है कि SIR की वजह से कहा जा रहा है कि इस बार भर भर के लोग घर से बाहर निकले हैं और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी इस बार चुनाव आयोग ने पुख्ता किए हैं। 3 लाख से अधिक कमांडोज और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो उतरी हैं। इसके बावजूद भी कहीं कहीं पर छिटपुट हिंसा देखने को मिली है, लेकिन वो चुनाव है, उसमें देखने को मिलता है। पक्ष विपक्ष इसीलिए बना है। लेकिन बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी कल साउथ कोलकाता में थी, भवानीपुर एरिया से साउथ कोलकाता से ममता बनर्जी ने कहा है कि ये 90% वोट से जनता को डरने की जरूरत नहीं है। जनता बिल्कुल भी, ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 90% से ऊपर मतदान हुआ है तो परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इस नैरेटिव पर आप विश्वास मत कीजिए। TMC आ रही है, ममता बनर्जी आपकी अपनी आ रही है, ममता दीदी, और इसी को ध्यान में रखते हुए 29 तारीख को वोट दीजिए। इसके अलावा जमकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर गरजी हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में हमने आपको आपकी औकात दिखा देना, महिला आरक्षण बिल में फेल हुए ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली तो आपसे संभलती नहीं है, आपकी नजर बंगाल पर बनी हुई है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने उन लोगों को भी धमका दिया है, प्यार से नहीं। देखिए, ममता दीदी हैं, जब बोलती हैं ना तो बिंदास होकर बोलती हैं, और कल भी बोला है कि जो लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दलाली में जुटे हुए हैं ना, जबरदस्ती कहा जा रहा है बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, मोदी मोदी जो कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, उनका नाम और एड्रेस हम अपने पास रखे हुए, एक बार चुनाव हो जाने दो, सबका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। एक बार सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है। শুনুন, মানুষ চেয়ার গড়ে, কিন্তু মানুষকে কেয়ার না করলে ওই চেয়ারটা মানুষ ফেলে দেয়। লোকসভায় পরাস্ত হয়েছেন তো, মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে এমপিরা, এবং এখন তো মাইনরিটি গভর্নমেন্ট, ভয় দেখিয়ে চমকে DCBI দেখিয়ে চালাচ্ছেন। 2026-এই পতন শুরু হয়েছে, 2026-এই আপনাদের বিদায় নিতে হবে। আগে দিল্লি সামলান, তারপরে বাংলার দিকে তাকান। আর আজকে যা ভোট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, আমার চোখ যদি সত্য হয়, আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে, তাহলে অলরেডি আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি। তুমি ক্যাচ করা করবে। আগামী দিনে সবাইকে ভোট দিতে হবে। এদের একেবারে রাজনৈতিক দুর্মুষ করতে হবে। দুর্যোধন আর দুঃশাসন, এরা দেশের দুশ্মন। মনে রাখবেন, এদের কেয়ার করা যাবে না, মানুষকে কেয়ার করতে হবে। পাবলিক চেয়ার ইজ দ্য পার্মানেন্ট, কনস্টিটিউশন ইজ আওয়ার আওয়ার পিলার। কনস্টিটিউশনকে ভেঙে দিয়েছ। বাবা সাহেব আম্বেদকরের কথা শুনো না, সব ইল্লিগাল কাজ করে যাচ্ছে
আর বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন মুখে লোকপ্রাস্টার নিয়ে বসে আছে, শিখিয়ে দিয়েছে আমাকে যেন মিটিং করতে না দেয়। আর কি কি করবে ভাই? আর যারা বিজেপির বেশি দালালি করছে সব কটার নাম লেখা আছে, একেবারে A to Z, কার কোথায় বাড়ি। আমাদের লোকেদের খোঁজ নাও তো, তোমাদের যতজন যেখান থেকে এসছে বিজেপি পরিবার দেখে দেখে বেছে নিয়ে এসেছো, আর উকুন বাছার মতো অফিসারদের অ্যাপয়েন্ট করেছো। মনে রেখো, কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার, এটা জেনে রেখো। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি হাঁটাতে হবে। देखिए, पिछले 15 साल में ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है, दोनों इस बार जनता समीक्षा कर रही है। जनता को सुरक्षा चाहिए, खासतौर पर बेटियों, महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षा। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को नए अत्याधुनिक हॉस्पिटल्स चाहिए। हालांकि अगर बात करें हम कोलकाता की, तो कोलकाता में कई बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में धांधली भी बहुत है, क्राइम भी बहुत हो रहा है। आपने हाल फिलहाल में आरजीकर का मुद्दा देखा होगा, संदेश खाली का मुद्दा देखा होगा, मुर्शिदाबाद में 2 हिंदू बाप और बेटे को मार डाला गया, वो देखा होगा। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं हाल फिलहाल में जिसमें ममता बनर्जी के लिए लोगों का जो विश्वास और प्रेम था वो हिल गया है। और यही कारण है कि लोगों को लग रहा है कि ये जो 90% से ऊपर पहले चरण में मतदान पड़ा है, ये मतदान परिवर्तन वाला मतदान है। देखिए, परिवर्तन की हवा चली है नहीं चली है अलग बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के जब आला अधिकारी, आला नेता यहाँ आते थे तो ऐसे ही भीड़ देखने को मिलती थी। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते थे, जय श्री राम के नारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगते थे, लेकिन हुआ कुछ खास नहीं था। वहीं कल कुछ जानकारों का कहना है जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उनका कहना है कि भाई अभी भी 165 ममता और 125 बीजेपी है। अगर ऐसा भी होता है तो यकीन मानिए बीजेपी तख्ता पलटने में तेज है, खरीद फरोख्त करने में दोनों पार्टियां माहिर हैं। और आपको तो पता है कि कई लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 100-120 भी लेकर आती है तो इधर उधर से तोड़ ताड़ कर जुगाड़ कर ही लेगी, क्योंकि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 4 तारीख को मिठाई भी बटेगा और झालमुड़ी भी बटेगा। इसलिए स्वागत करने के लिए बंगाल की जनता तैयार रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख को शहरी एरियाज में जो वोट होने वाले हैं, खासतौर पर अगर हम साउथ कोलकाता और हावड़ा के एरिया के हुगली की बात करें, तब देखिए अगर हावड़ा की बात करेंगे तो उत्तर हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी जिले और क्षेत्र हैं वहां पर टीएमसी मजबूत है। साउथ कोलकाता की बात करें तो टीएमसी की, ममता दीदी की पकड़ अच्छी है। तो शहरी एरिया में भारतीय जनता पार्टी का पिछला रिकॉर्ड देखें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जब परिवर्तन की हवा चली है तो शायद इस बार वहां भी कुछ बदलाव देखने को मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।